Namaskar students, I hope you all are well at your home and you are also doing your studies. It is your computer class for class 8, chapter 5. Chapter name is Introduction to Python, part 5. In our last class we have discussed about some operators like subtraction operator, multiplication operator, division operator. These are the operators which we have discussed in our last class. When we want to create a difference between two digits, or we want to multiply two digits, then we use subtraction operator, and similarly multiplication operator. Okay, and when we want to divide, then we use division operator. In our today's class, we will discuss that what is variable in Python and what is the variables, and how to convert float into integers. Okay, how you can convert float into integers. So first of all, how you will convert float into integer. So to convert float into integer, you have to write the command. And what is float? Float are the some point value, some decimal point value which we want to insert in the Python. Okay, these all are the different type of data types. Integer is also a data type. We have discussed this in our last class, and float is also a data type. And here is when we want to convert a float into an integer. हम एक float को integer में convert करना चाहते हैं, and sometime we need to convert a floating point number into an integer. For this we will write int command. Okay, int command लिख के हम उसे convert कर सकते हैं. Now I'm opening Python. So with the help of Python you will understand the topic what I want to say. Okay, so I'm searching Python here. So float is a data type and integer is also a data type. Here is when we want to convert a float into an integer. मान लीजिए कोई float value है, कोई हमने value ली a is equals to 2.345. ठीक है, it's a value. तो obvious सी बात है, ये जो decimal value है that is what float value. ये एक floating point value है. ठीक है, अब अगर हम इसे प्रिंट करते हैं, हमने लिखा यहाँ पे प्रिंट ए. ठीक है, इसको हमने यहाँ पे प्रिंट किया, तो क्या क्या प्रिंट हुआ? जो वैल्यू ए के अंदर है वो यहाँ पे प्रिंट हो गई. ठीक है, जब भी हम किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू देते हैं और फिर उसके बाद में हम उसको इस तरीके से प्रिंट करते हैं तो वो प्रिंट हो जाती है. तो जो भी वैल्यू ए के अंदर है वो प्रिंट हो गई. ठीक है, नाउ अगर मैं ये लिखती हूँ कि लाइक ए इज इक्वल्स टू इंट एंड 2.345, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने ए के अंदर जो वैल्यू है, जो कि एक फ्लोट वैल्यू, उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट किया है. ठीक है, नाउ आई एम गोइंग टू प्रिंट ए. तो देखिए क्या प्रिंट हुआ? 2 प्रिंट हुआ. क्यों? देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ए के अंदर जो वैल्यू थी वो एक फ्लोट वैल्यू थी, डेसिमल पॉइंट थे 2.345, और जब हमने ए को प्रिंट किया तो यहाँ पे प्रिंट हुआ 2.345. ओके, यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने ए जो वेरिएबल है उसके अंदर जो वैल्यू डाली है वो हमने उसको इंटीजर में कन्वर्ट करके डाला है. लाइक ये जो 2.345 है उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और फिर उसको ए में हमने एंटर करवा दिया. अब हमने जब ए को प्रिंट किया तो यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल वैल्यू नहीं प्रिंट हुई, यहाँ पे 2 प्रिंट हुआ. उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट था उसको
रिमूव कर दिया किसने, इस इंट कमांड ने, ठीक है। सो लाइक दिस यू कैन कन्वर्ट अ फ्लोट इनटू एन इंटीजर। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग वेरिएबल इन पाइथन। सो अभी तक हमने क्या किया है, एक एक्सप्रेशन लिखा और उसको प्रिंट कर दिया, ठीक है। लेकिन अगर हमें कोई वैल्यू इंसर्ट करवानी है, देन वी यूज वेरिएबल फॉर देम। Most of the time we store the result obtained by simplifying the expression and then use the store value somewhere else, and this we can do with the help of variable. Okay, so what is variable? A variable is a name given to memory location in the RAM. हम पाइथन के थ्रू जो भी डेटा सेव करेंगे उसे हम एक नेम दे देंगे, जिस नेम से वो हमारी जो मेमोरी है उसमें सेव होएगा। तो वो जो नेम है, दैट नेम इज वेरिएबल। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ स्टोरेज इन अ प्रोग्राम। The value stored in a variable can be changed during the program execution. A variable is similar to single letter name used in the mathematical like ABC, X, ठीक है। वेरिएबल क्या हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी नेम हो सकता है, जो नेम आप अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं या जो नेम आप अपने वेरिएबल को देना चाहते हैं, ठीक है। तो लेकिन वेरिएबल डिक्लेयर करने के बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो यू हैव टू फॉलो दैट रूल्स। द वेरिएबल मस्ट बिगिन विद द लेटर A to Z, ओके, या अंडरस्कोर। आपका जो वेरिएबल है वो या तो किसी लेटर से स्टार्ट होना चाहिए या अंडरस्कोर से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। द अदर कैरेक्टर इन द नेम ऑफ वेरिएबल कैन बी लेटर, नंबर और अंडरस्कोर, ठीक है। अदर जो कैरेक्टर होंगे वो भी लेटर, नंबर या अंडरस्कोर हो सकते हैं। वेरिएबल आर केस सेंसिटिव। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कहीं पे कैपिटल लेटर यूज किया है या स्मॉल लेटर यूज किया है तो आप पूरे प्रोग्राम में आगे उससे उसी तरीके से यूज करेंगे, लाइक इट इज केस सेंसिटिव। देन वेरिएबल कैन बी ऑफ एनी लेंथ बट वी शुड कीप लेंथ ऑफ द वेरिएबल नेम रीजनेबली लिमिटेड। बहुत लंबा नेम नहीं होना चाहिए वेरिएबल का, रीजनेबल सा नेम होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़ा नेम लिख रहे हैं वेरिएबल का, आपको आगे उसमें आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है। देयर आर सम रिजर्व्ड वर्ड which cannot be used as a variable like for, input, output, print। तो कुछ पाइथन की अपनी कमांड्स हैं, जैसे हमने यहाँ पे प्रिंट कमांड यूज किया है, या कोई ऐसा कीवर्ड जो ऑलरेडी पाइथन में यूज हो रहा है, जैसे फॉर, इनपुट, आउटपुट, प्रिंट। तो ये जो सारे नेम्स हैं इनका हम वेरिएबल इनको नहीं चूज कर सकते, मतलब हम अपने वेरिएबल का नेम ये नहीं दे सकते। The conversion for writing a variable, use readable name of a variable। वेरिएबल के जो नेम्स होंगे वो रीडेबल होने चाहिए, वो इजी टू रीड होने चाहिए, ठीक है। और आपको समझ में आने वाले होने चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि इस वेरिएबल में आपने कौन सी वैल्यू इंसर्ट करवाई थी। आपको जो फर्स्ट नेम है अपना, जो भी आपका वेरिएबल है उसका जो फर्स्ट नेम है वो आप कैपिटल दे सकते हैं, बाकी सारे स्मॉल्स रखने चाहिए, ठीक है। अंडरस्कोर का यूज करना चाहिए जिससे डिफरेंशिएट हो जाए। अगर आप, क्योंकि आप वेरिएबल के बीच में स्पेस नहीं दे सकते, तो अगर आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है कि आपको पूरा स्पेलिंग नहीं समझ में आ रहा है, लाइक मेरा वेरिएबल है माई फर्स्ट नेम या स्टूडेंट फर्स्ट नेम, तो स्टूडेंट फर्स्ट नेम आप एक साथ लिखेंगे तो वो शायद पढ़ने में इतना इजी टू रीडेबल नहीं होएगा, तो आप उसको स्पेस देने की बजाय उसमें आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना जो वेरिएबल है उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। आई जो होता है, अपर केस आई और अपर केस ओ जो होता है उसको यूज करना अवॉइड करेंगे, क्योंकि आई और ओ जो होता है वो समटाइम 1 और 0 जैसा दिखता है, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू दैट हाउ यू कैन
यूज अ वेरिएबल, जैसे आपको पाइथन के प्रोग्राम में कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो सिंपल आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वो जो वेरिएबल है उसका नेम लिखना पड़ेगा। लाइक मैंने लिखा ABC, ठीक है, या मैंने एक वेरिएबल लिख लिया यहाँ पे टोटल अमाउंट। ओके, तो हमने कोई भी वेरिएबल यहाँ पे लिखा, लाइक मैंने लिख लिया सैलरी। कोई भी आप यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सैलरी, और इसमें एक मैंने वैल्यू डाल दी 3000, ठीक है। तो ये सैलरी नेम से एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया जिसके अंदर हमने एक वैल्यू इंसर्ट करवाई है 3000। ओके, सो ये जो इक्वल का साइन होता है, दिस इज कॉल्ड एज असाइनमेंट साइन। जब भी हमको किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी होती है तब हम इसका यूज करते हैं। ये असाइनमेंट साइन होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। मैथ्स में हम इसे इक्वल बोलते हैं, बट यहाँ पे हम इसे असाइनमेंट ऑपरेटर बोलेंगे, ठीक है। जब भी किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को कोई वैल्यू असाइन करनी होती है, लाइक किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करनी होती है, तो हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, सैलरी नाम का एक वेरिएबल लिया है जिसको हमने वैल्यू असाइन की है 3000। ओके, तो ये जो सैलरी नाम का वेरिएबल है ये डिक्लेयर हो गया, और इसमें वैल्यू क्या चली गई, इसमें 3000 वैल्यू चली गई है। अब आप जब भी कभी सैलरी को प्रिंट करना चाहेंगे तो आपको वहां पे 3000 नहीं लिखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सिर्फ प्रिंट कमांड देनी पड़ेगी और उसमें आपको लिखना पड़ेगा सैलरी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने अगर सैलरी को कैपिटल लेटर्स में लिखा है या स्मॉल लेटर्स में लिखा है, मतलब ये दिस इज केस सेंसिटिव, सो आपको उसी तरीके से उसको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने सैलरी को प्रिंट किया तो ये 3000 यहाँ पे आ गया, जो कि किसकी वैल्यू थी, इस वेरिएबल की वैल्यू थी। नाउ मैंने एक नया वेरिएबल लिया है, लाइक नेक्स्ट सैलरी, नेक्स्ट सैलरी, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा नेक्स्ट सैलरी। अब नेक्स्ट सैलरी में हमने क्या किया, इक्वल, और जो हमारी ओरिजिनल सैलरी थी उसको हमने प्लस करवा दिया 5000 से, ठीक है। तो ओरिजिनल सैलरी को प्लस कर दिया यहाँ पे 5000 से। तो अब जब हम इसको प्रिंट करेंगे नेक्स्ट सैलरी को, तो ये जो नेक्स्ट सैलरी है इसमें वो सैलरी हमारी प्लस होके आ जाएगी, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे मैंने लिखा प्रिंट, और यहाँ पे हमने लिख दिया तो देखिए क्या हुआ, नेक्स्ट सैलरी जिसमें हमने 5000 प्लस किया था वो 3000 के साथ 5000 प्लस हो गया, जबकि यहाँ पे हमने सिर्फ सैलरी लिखा है, अमाउंट नहीं लिखा है। लेकिन जो ये वेरिएबल है, सैलरी नाम का जो वेरिएबल है, इसको ऑलरेडी हमने 3000 वैल्यू जो है वो असाइन की हुई है, इसलिए ये इसके साथ प्लस होके यहाँ पे 8000 आ गया। तो इस तरीके से आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, वेरिएबल यूज कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। So these two topics we have discussed in our today's class. First is how you can convert a float into an integer, and second one is what is the variable in Python. To complete all your work in your notebook and use Interleaf notebook. That's all for today's class. Remaining topics of this chapter we will discuss in our next class. Thanks for watching this video. Stay healthy, stay safe, and keep learning. Thank you so much. Have a nice day.